Okay, so now first I will share the screen where I will show you a PPT, and through that we will try to understand the content. So let's see, this is the Himalaya, our content, how Himalaya was formed. We have discussed earlier in a previous classes that how two different plates collided to each other. Clear? The Indo-Australian plate, which was a part of the Gondwana land, a landmass which comprised India, Africa, South America, Antarctica, and Australia. And the smaller part of this Gondwana land, which got separated later on and was known as the Indo-Australian plate. This Indo-Australian plates moved towards north, clear, and ultimately got collided with the much larger Eurasian plate, clear. Due to this collision, sediments and debris which was deposited in the Tethys Sea in between the Eurasian and Indo-Australian plates, the sediments and the debris got folded, and in this way the Himalaya was formed. So let's see here the oldest landmass, the peninsular part, which was part of the Gondwana land. The Gondwana land included India, Australia, and as I have told you, South Africa, South America as one single landmass. The convectional current, we will discuss that what is convectional current. So you can see here the convectional current split the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plates after being separated from the Gondwana land towards north. Next, you can see here the northward drift resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosynclines known as the Tethys were folded to form the Himalayan mountain system of Western Asia, and we can see the Himalaya. The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and a subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. In due course of time, this depression gradually got filled with the deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. It means when we will discuss this content, how Himalaya was formed, we will understand two things. Clear? First, how Himalaya was formed, and later on, we will also know that how the northern Great Plain was formed, because formation of the northern Great Plain was part of the formation of the Himalayas. Clear? In a later period. So let's see a diagram and through which we will try to understand. Clear? You can see here C. This sea was basically known as a Tethys Sea. This was called as a Tethys Sea. Clear? Now, rivers from both sides. Clear? Suppose this upper landmass part or the uplifted part was basically known as the Eurasia. Clear? And this uplifted part was known as Indo-Australian plate. ये पोर्शन क्या है? ये है यूरेशियन प्लेट. ठीक है?
तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि आ, इस इलाके से यानी यूरेशियन प्लेट्स की तरफ से, चूंकि यूरेशियन प्लेट एक अपलिफ्टेड लैंडमास था और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी अपलिफ्टेड लैंडमास यानी एक लैंडमास था, इनके बीच में कह सकते हैं सेलो डेप्थ वाला टेथिस सी था। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो दोनों अपलिफ्टेड पार्ट है वहां से तमाम जो नदियां निकलती थी, ठीक है, दोज रिवर्स brought the sediments with their flows and ultimately deposited their sediments in this low lying area depth Tethys Sea. Clear? इस टेथिस सी में ये सेडिमेंट्स भरने शुरू हो गए। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे देखो ये सेडिमेंट यहां डिपॉजिट होता जाएगा, उसका असर क्या होगा, उसका असर ये होगा कि जिस जैसे जैसे सेडिमेंट्स का ये डिपोजिशन होता जाएगा, वैसे वैसे नीचे जो सेडिमेंट्स यानी सबसे पहले जो सेडिमेंट जमा हुआ था वो और वो नीचे चलता जाएगा, ठीक है, यानी धरती में नीचे की तरफ वो दबता जाएगा और ऊपर से लगातार लेयर बाय लेयर हम कह सकते हैं सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता जाएगा, क्योंकि रिवर्स जो है वो लगातार फ्लो कर रही है और रिवर्स के फ्लो के साथ साथ सेडिमेंट्स लगातार आता जाता है और वो लोलिंग एरिया में डिपॉजिट होता जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये डिपोजिशन होता जा रहा है, तुम देख रहे हो यहाँ पे ये अलग अलग कलर जो है वो दिखा रहा है अलग अलग समय के डिपोजिशन को, ठीक है, जितना ज्यादा डिपोजिशन होता जाएगा उससे असर क्या पड़ेगा, तो कंप्रेशन इनटू द रॉक, ये जो रॉक है यानी ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर पे दबाव डालती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊपर वाली लेयर का नीचे वाली जो डिपॉजिटेड लेयर है उस पे जैसे जैसे प्रेशर पड़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो दोनों फ्लैंक्स हैं, ठीक है, यानी ये फ्लैंक्स है और ये फ्लैंक्स है, ये फ्लैंक्स क्या होगा, ये क्लोज, दे केम टू क्लोजर, दे केम क्लोजर, ये नजदीक आते जाएंगे, ठीक है, यानी ये बेंड होता जाएगा, मुड़ता जाएगा, और जैसे जैसे मुड़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा, ये जो सेडिमेंट्स यहां पर डिपॉजिटेड है ना उनको ये फोल्ड कर देगा, ठीक है, यानी उन पे जब प्रेशर दोनों फ्लैंक की तरफ से तुम देख रहे हो यहां पे प्लेट्स मूवमेंट है, यहां पे प्लेट्स मूवमेंट है, ठीक है, जैसे जैसे ये फ्लैंक नजदीक आएगा दोनों फ्लैंक वैसे वैसे इसमें जो डिपॉजिटेड डेब्रीज और सेडिमेंट्स हैं वो सेडिमेंट्स में क्या पड़ जाएगा, फोल्ड पड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से वो उठ जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली जो हिमालयस का फॉर्मेशन माना जाता है, ठीक है, यही हम बेसिकली कल भी डिस्कस कर रहे थे इसको, ठीक है, ब्रीफली हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था कल इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके रेफरेंस के लिए मैं थोड़ा सा और पीछे जा रहा हूं तो तुम्हें इसके रेफरेंस में ये बात समझ में आएगा। देखो गोंडवाना लैंड जो हम कल बात कर रहे थे, गोंडवाना लैंड एग्जैक्टली क्या था, तो तुम देख रहे हो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड कंप्राइज साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एक लार्जर लैंड मास था। इसमें से ये जो पोर्शन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये साथ में टूटकर अलग होते हैं, बाद में क्या होता है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भी टूटता है, ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो इंडियन लैंड मास है इसकी डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव करनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और इसके मूवमेंट से क्या होता है, ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट ही अल्टीमेटली इसके यानी अगर हम बात करें तो ये अपर पोर्शन जो है यहाँ, यानी समझ लो ये जो दिख रहा है तुम्हें ये जो येलो पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, सपोज तुम ऐसा मान लो जैसा भी मैं बता रहा था ऊपर में कि ये टेथिस सी था इस जगह पे, ठीक है, और इसके ऊपर ये व्हाइट वाला पार्ट जो है इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि इस जगह पे यूरेशियन प्लेट था, ठीक है, तो ये इंडियन प्लेट की जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या, और यूरेशियन प्लेट जो है उसकी मूवमेंट जो है वो साउथ वार्ड है, ठीक है, वो साउथ की तरफ मूव कर रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, इस इलाके में जो भी डेब्रीज है, ठीक है, ये डेब्रीज क्या होंगे, इसी डेब्रीज में फोल्ड पड़ जाता है और फिर हम कह सकते हैं कि हिमालयस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं हम, छोटा सा एक वीडियो क्लिप, और उसके बाद हमें ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सो लेट मी शो यू अ वीडियो।
This is the Indian landmass. This one is a Eurasian plate. यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन लैंड मास है. देख, सी हाउ बोथ पोर्शन गेट कोलाइडेड. क्लियर? ओके. एंड नाउ हिमालय वाज फॉर्म्ड. ओके. तो देखा तुमने, इसमें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी समझना, वो क्या था? फिर से मैं इस पिक्चर पे बैक आ रहा हूं. जैसा बताया, देखो, ये टेथिस सी था, और एक साइड में जो तुम देख रहे थे नॉर्दर्न साइड में ये यूरेशियन प्लेट था, और सदर्न साइड में हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात कर रहे हैं. ठीक है? तो जो इंडियन प्लेट था, इसकी डायरेक्शन तुम देख रहे थे इस वीडियो में, ये नॉर्थवर्ड था. और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ मूव होता है, गोंडवाना लैंड से टूट कर अल्टीमेटली ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब मूव करता है, तो और टेथिस सी जो साउथ की तरफ मूव कर रहा था, दोनों के कोलिजन से हम देखते हैं हिमालयस का फॉर्मेशन होता है. तो यहां पे देखो, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हमारा है ना, वो थ्योरी के माध्यम से हमें ये बात समझ में आती है कि किस तरह से दो जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट के कारण से इस जगह पे जियोसिंक्लाइन कहने का मतलब क्या होता है? जियोसिंक्लाइन कहने का मतलब होता है लो लेइंग एरियाज. ठीक है? सिंक्लाइन, सिंक समझते हो ना, जैसे बेसिन का सिंक होता है. ठीक है? बेसिन या सिंक, किचन के बर्तन धोने के लिए किचन में सिंक बना होता है. ठीक है? जिसमें बर्तन धोते हैं. सामान्य तौर पर उसको भी बेसिन लोग बोल देते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या है? सिंक है वो. तो सिंक क्या है? वो गहरा क्षेत्र है. ठीक है? और उस गहरे क्षेत्र में जो सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड है, उसमें वो फोल्ड पड़ता है, उसके कारण से हिमालय का निर्माण होता है, जो इस छोटे से वीडियो क्लिप के थ्रू ये समझाने का प्रयास किया गया है. तो अब हम जो है वो हम बेसिकली इसके स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे यहां पे. तो देखो, जैसे इस फिगर में तुम्हें दिख रहा है, हिमालय की 3 रेंजेस जो है वो बिल्कुल स्पष्ट. हिमालय जो रेंज है, ये जो रेंज, ये वाली रेंज, इस रेंज को कहते हैं ग्रेटर हिमालय. सभी को दिख रहा है ना ये? यस सर. मैं क्लियर नहीं देख रहा, ग्रीन ग्रीन मैच कर रहा है. ओके. तो ये ग्रेटर हिमालय इस, ओके, देखो, अच्छा ठीक है, सर रेड मैच कर जा रहा है आउटलाइंस क्या तो है? मैं इससे ही दिखाता हूँ फिर. हाँ, बता रहा हूँ मैं. पहले मुझे कुछ कलर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाए. देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये मैंने किसको दिखाया है यहाँ पे? ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें ना, ये वाली लाइन, इसी को कहते हैं ग्रेटर हिमालय. ठीक है? ग्रेटर हिमालय, ये और एक नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी में हिमाद्री कहते हैं. और कह सकते हैं ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, दो नाम से जाना जाता है. इस अगर तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हें क्या चीज जो है वो सबसे विशिष्ट इसमें दिखाई दे रही है, ये जो यहां से शुरू हो रहा है और बिल्कुल यहां तक जा रहा है, इसमें तुम्हें सबसे विशिष्ट क्या दिख रहा है जो तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? बताओ मुझे ग्रेटर हिमालय की कोई एक विशेषता. ओके, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं. अब मैं दूसरी रेंज को दिखा रहा हूं. ये जो है ना, ये दूसरी रेंज है, इसको कहते हैं लेसर हिमालय. लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, या फिर इसको लघु हिमालय कहते हैं. ये वृहत हिमालय है या हिमाद्री है,
ये लघु हिमालय है या लेसर हिमालय है। ओके, और फिर एक तीसरी रेंज भी तुम्हें दिख रही है, ये रेंज जो है इसको कहते हैं शिवालिक फुटहिल्स। ठीक है, शिवालिक फुटहिल्स। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इन तीनों जो डिफरेंट रेंजेस है, इसमें तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में अगर पूछूं कि जो ग्रेटर हिमालय है, तो तुम कौन सी विशिष्टता जो है इसको तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो बताओ। यस एनीवन? नो, नो रिस्पॉन्स। देखो ऐसा है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि ये जो ग्रेटर हिमालय मैंने दिखाया, ये ग्रेटर हिमालय जो है वो कंटिन्यूअस रेंज है। ये कहीं भी कटी हुई नहीं दिखती है। ठीक है, देखो ये बिल्कुल एक कंटिन्यूअस रेंज है यहां तक। क्लियर? जबकि अगर इसके कंपैरिजन में हम लेसर हिमालय की बात करें, ये जो लेसर हिमालय है उसकी बात करें, तो ये डिसेक्टेड दिखती है हमें। कई जगहों पर ये कटी फटी दिखती है, जैसे यहाँ, फिर यहाँ वो कटा हुआ दिखता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूं, मान लो इस जगह पे देखो कटा हुआ दिख रहा है, फिर वो इस जगह पे वो डिसेक्टेड है, कटा हुआ है, फिर इस जगह पे वो डिसेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट इस जगह पे वो कटा हुआ दिखता है, फिर इस जगह पे वो कटा हुआ दिख रहा है, और फिर इसी तरह से इधर जाए तो इधर भी कटा हुआ दिखता है। अगर हम शिवालिक फुटहिल्स की बात करें तो ये भी डिसेक्टेड दिखती है। देखो यहाँ से कटी हुई दिख रही है, यहाँ से कटी हुई दिख रही है, यहाँ से कटी हुई दिख रही है, यहाँ से कटी हुई, यहाँ से कटी हुई। तो कहने का मतलब क्या है, इन कंपैरिजन ऑफ द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक फुटहिल्स, the greater Himalaya is a continuous range and almost not dissected. Clear? ये कंटिन्यूअस रेंज है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कंटिन्यूअस क्यों है, और बाकी की जो साउथ में जो पैरेलल, सदर्न पैरेलल जो रेंजेस है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय के साउथ में ये रेंज में लेसर हिमालय जो इसकी पैरेलल दिख रही है, और शिवालिक फुटहिल्स है वो लेसर हिमालय के साउथ में पैरेलल दिख रही है। तो ये दोनों रेंज जो है कटे हुए हैं, और हिमालय जो है वो एक तरह से डिसेक्टेड नहीं दिखता है। इसके पीछे देखो कारण ये है कि हिमालय जो है इसकी हाइट 6000 मीटर है। ठीक है, एवरेज हाइट 6000 मीटर है, यानी 6 के आसपास। ये हाइट कहां से मेजर हो रही है, तो सी लेवल से। स्थल पे जो भी हाइट मेजर करते हैं वो सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं। सी लेवल इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग हाइट of any geographical feature, clear, or that relief feature from the land. अब ये जो कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर की जो एवरेज हाइट है, इस जगह पे हम कह सकते हैं कि का है वो कह सकते हैं थ्रू द ईयर वो आइस कैप्ड रहता है वो। ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स में जो बर्फ का जो जमाव है, ठीक है, से जो बर्फ की जो डिफरेंट लेयर है उसके ऊपर सकते हैं स्नोफॉल होता रहता है। दबने के कारण नीचे की जो लेयर होती है वो अल्टीमेटली क्या होता है, वहां से पानी निकलना शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर पड़ेगा वो क्या करेगा, नीचे की, जैसे तुम बहुत सिंपल सी बात, अपने फ्रीजर से एक मुट्ठी बर्फ निकाले तो कैसा है, वो तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकाल के अपनी मुट्ठी में उसको बंद कर लेते हो, ठीक है, और मुट्ठी को भिंच लेते हो, दबा लेते हो, तो क्या होता है, प्रेशर के कारण क्या होता है, बर्फ जो है पिघलनी शुरू हो जाती है। यानी जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बर्फ पिघलनी शुरू होती है, पानी बनने लगता है। वो बिल्कुल इसी तरह का है। ये ग्लेशियर्स की जो मोटी लेयर होती है ना, एक के प्रेशर के कारण हीट के इंक्रीजमेंट से नीचे से मेल्ट, फिर वहां से पानी का रिसाव होता रहता है, यानी पानी मेल्ट होकर वो पानी बहता रहता बनता है, और वो गंगा और यमुना कैसी नदियां हैं, ये कह सकते हैं पेरेनियल सदावाही नदियां हैं, थ्रू आउट द ईयर
बारिश तो सालों भर नहीं होती, जो सालों भर गंगा नदी में पानी बहती रहती है, बहता रह गंगो जो गंगा सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, उत्तराखंड। हाँ, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा और तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो मैं जैसा कह रहा था, रीजन है वो ग्लेशियर है, ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री, जहां से गंगा और यमुना निकलती है, और उस कह सकते हैं एक बना रहता है, और गंगा जहां तक बहती है बंगाल की खाड़ी तक, वहां तक वाटर जो है उस जो ग्रेटर हिमालय है, यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और ये नदियां, जाहिर बात है कि नदियां किधर को फ्लो करेंगी, नदी अगर इस इंडियन लैंडमास के ढाल की बात करें ना, तो इंडियन लैंड स्लोप जो है इंडियन लैंडमास की, वो साउथवर्ड है और फिर ईस्टवर्ड है, ठीक है, यानी साउथ ईस्ट इंडियन लैंडमास जो है वो उसकी ढाल जनरल, ठीक है, यानी दक्षिण और पूरब की तरफ है। तो हो क्या रहा है, हिमालय से निकलने वाली, यहां से निकलने वाली जो नदियां है ना, ये नदियां साउथ की तरफ बहती हैं। जब ये नदियां साउथ की तरफ बहेंगी तो क्या करेंगी, पहाड़ों को काटेंगी वो, ठीक है। तुम देखते तो फोल्ड होती है, मुड़ती है, जहां भी कमजोर मिलती है। तो हिमाद्री वाले इलाके से लेसर हिमालय को काटी, और लेसर हिमालय को काटने के बाद फिर वो जहां जहां से उसको रास्ता, यानी जहां पे हार्ड रॉक का फॉर्मेशन मिल जाता है वहां पे वो रास्ता बदल लेती है, जहां सॉफ्ट रॉक मिलता है वहां वो उस पहाड़ी को काट देती है। और मतलब काटने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई कुदाल लेकर बैठा और एक दिन में काट दिया। वो नदियों का ये काम जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष से चलता आ रहा है, ठीक है, और लगातार चल रहा है। तो इसने लेसर हिमालय को काटा, और फिर लेसर हिमालय को काटने के बाद फिर नेक्स्ट फिर देखते हैं कि साउथ में एक बैरियर मिलता है, वो है शिवालिक फुटहिल्स, ठीक है। तो शिवालिक फुटहिल्स के जिस इलाके में चट्टानों की जो मौजूदगी है वो कमजोर दिखती है, वहां पे फिर से ये शिवालिक को भी काटती है, और इस तरह से ये नदियां बहती हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि ग्रेटर हिमालय जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में दिखती है, ठीक है, जबकि लेसर हिमालय और शिवालिक फुटहिल्स जो साउथ में उसके पैरेलल है, रेंज है, वो डिसेक्टेड दिखती है, नदियों ने उसको काटा हुआ है, ठीक है। और जहां जहां नदियों ने काटा है लेसर हिमालय को और शिवालिक को, उस जगह पे क्या बन गया है, जैसे देखो ये जो कटी हुई जगह है ना यहाँ पे रेंज, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पास, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको दर्रा, ठीक है, दर्रा या पास। बेसिकली क्या है, इस माउंटेन को इसके साउथ से नॉर्थ में क्रॉस करने का मात्र एकमात्र उपाय कौन सा है, यही दर्रे, यानी दर्रे जो है इसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन रूट्स डेवलप किए जाते हैं, और इस इलाके से दर्रे हैं हिमालयज में। जैसे अगर हम सिक्किम की बात करें ना, देखो ये है सिक्किम, ये है सिक्किम यहाँ, ठीक है। एक बड़ा ही फेमस दर्रा है जिसका नाम है नाथुला, ठीक है, जो तिब्बती भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा, पासेस। तो ऐसे बहुत सारा है, बारा लाचा है, नाथुला है, ये दर्रा भी बेसिकली क्या है, सिक्किम से यानी भारत के इस हिस्से से रहा है, समय से रहा है, क्योंकि नदी ने काट के ये दर्रे को बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तुम देख रहे हो सिक्किम से कौन सी श्रेणी गुजर रही है हिमालय की, ग्रेटर हिमालय, देखो ये सिक्किम से गुजर रही है। और यहाँ कल जो मैं बात कर रहा था ना, ये देखो कंचनजुंगा, ये कंचनजुंगा जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में पाई जाती है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसको हाईएस्ट पिक ऑफ हिमालय इन इंडिया, ठीक है। अब तुम कहो कि मैं इंडिया क्यों लिख दिया इसको, हिमालय की सबसे पिक या सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजुंगा है, जो भारत में पाई जाती है। तो हिमालय की सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है बताओ,
जिसको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं? ग्रेटर हिमालय। कोई बता सकता है? नो 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 नो, ग्रेटर हिमालय तो माउंटेन रेंज है एक, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, क्या चोटी मतलब वो कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट। जबकि श्रेणी जो है वो क्या है, श्रेणी, हाँ यस, ये तुम्हें दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया है यहाँ पर कि तुम्हें अच्छे से दिख सके, इसलिए थोड़ा सा ये कलर फेड हो जा रहा है, ठीक है। ये है माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट कौन सा हिस्सा है ये हिस्सा जो है वो नेपाल है, ठीक है। ये नेपाल है जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की मौजूदगी कहां दिख रही है? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पिक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट कौन से पर्वत का हिस्सा है? तो ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम का हिस्सा है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम की कौन सी रेंज का हिस्सा है? तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम की जो सबसे ऊंची रेंज है, जिसको ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ये वाली, इस रेंज में ये सबसे ऊंची पिक है, वो चोटी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चूंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में अवस्थित है, लेकिन ये हिस्सा जो है वो भारत में नहीं पड़ता, वो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। भारत के हिस्से में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। मैं यहाँ तुम्हें 3 नाम यहाँ मेंशन करता हूँ, देखो। एक इस जैमबोर्ड पे मैं लिखता हूँ, तुम्हें ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। और ये फैक्ट है, जो तुम इसको समझ लो तो तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है इसके लिए। पहले मैं क्या यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, मैं ये मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट,